ये गोइंग लाइव मैंने प्रोसेस कर दिया है. सेटिंग अप योर मीटिंग फॉर फेसबुक लाइव. I think we are live. Start. Hello, good afternoon, everyone. मेरा आवाज आ रहा है, I think. Is it? There is something error comes here. Hello. Go ahead. Oh, hello, everyone. Good afternoon. Welcome here to on my page, Megha Chasatia. Here I am Megha Chasatia. I'm occupational therapist as well as sensory integration therapist, OPT therapist level 1 and 2. I have done general movement, Practice method, that is early intervention, as well sensory babies specialist. And here we have with us Dr. Manish Samlani. I really would like to welcome you, sir. And he is the founder of SOS Gurgaon, which is very renowned in Gurgaon, I must say. He's my mentor as well. And he is certified sensory integration therapist, even certified NDT therapist. He is doing research on autism. There are a lot of things to say, but definitely I don't remember the whole things. But he is working inclusively and developmental pediatric field. So welcome you, sir, once again. Thank you so much, Megha, and welcome all the viewers. I'm happy to be a part of the program. And Megha told me her intention was to create a huge sense of awareness, a huge sense of clarity about what the children go through and what can be offered to them in terms of therapy, also in terms of results, also in terms of what should be, what is good, what is correct or truth, and what is a myth. All these kind of intentions are so close to our hearts also, because parents go through so much in their journey towards helping their own children, that if we can create a little bit of help for them, empowerment for them, some kind of a clarity for them, I would be more than happy to do that. So Yeah. let's go ahead with the program. Yeah. Sir, we'll start in Hindi because there are so many parents who don't understand. Okay. Let's we start with the question answer or description. You can start with question and answer. I should. Question. Okay. I have questions that most of the parents पूछते हैं कि uh, पहले they were okay like at the age of 3 or at the age of 2. फिर धीरे 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 they are seeing a deterioration. So what is the exact reason why this happened actually? They are really confusing. They used to ask the neurologist, but neurologist also not able to give a proper answer. So as you are expert, so I also would like to know about this and parents too. Right. I understand your question and your query. I think it is a very genuine, very honest kind of a query to, because parents a lot of times get confused that why should it happen to our child when he was already doing fine? Why should it happen to him that in due course of time, instead of improving or instead of getting better, there is a sign of going down. So let me tell you that it is true that uh, it is true and a fact that children go through, not all children, but it is a fact, a medical fact, that there is a term called regression. And the term regression means that in apparently normal, typical, regular situation, the child was going fine, he was acquiring words, probably he was acquiring the imitations and actions. But even then, in due course of time, there's a regression. And regression basically means there may not be a reason for it specifically, but there's usually, or there may or may not be even a trigger for it. Like, there's a trigger after which the child actually goes back a little, or skills, already acquired skills get lost. So brain is such that there is a possibility, there is a scope for regression for known reasons or for unknown reasons. Regression is not something that is a impossible entity. ऐसा नहीं है कि ब्रेन अगर डेवलप
Hello. 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 I think there is some technical issues I'm facing here. I cannot hear. Hello. I'm leaving Facebook for at least 2 minutes. Sorry, guys. Just wait, please. Sorry, there is some electric fusion. We are connecting very soon. There is some electric. Yes. Okay. Okay. I hope we are back on the FB Live. And as you know, the questions and all will come there on the FB Live as well. Yeah, So, it's already showing that live on Facebook. So I think it's. ठीक है, fair enough. So, जैसा मैं कह रहा था कि जब ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है, लेकिन ब्रेन के डेवलपमेंट के साथ साथ रिग्रेशन होना भी पॉसिबिलिटी है. ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि कभी रिग्रेशन नहीं होता है. रिग्रेशन कई वजहों से हो सकता है, कई ट्रिगर से हो सकता है, और कई बार चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिलेज में, ऑटिज्म में रिग्रेशन का रियल रीज़न पता नहीं होता है. बट रिग्रेशन अपने आप में एक ट्रुथ है कि ऐसा होता है कि चाइल्ड ऑलरेडी एक्वायर्ड स्किल्स को लूज कर देता है. लेकिन इसमें एक और एस्पेक्ट है बहुत ज़रूरी जो समझने वाला है. समटाइम्स क्या होता है कि हम बच्चों को जिस उम्र में ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक थे, अच्छे थे, बहुत ठीक कर रहे थे, वो उम्र दूसरी होती है, और जिस उम्र में हम रिग्रेशन देखते हैं वो दूसरी होती है. मीनिंग देयर बाय कि चाइल्ड ने 1 साल की एज तक जो भी एज अप्रोप्रिएट था उसने स्किल एक्वायर किया, और हमें वो दिखाई दिया, या हमें जितनी भी लिमिटेड चीज़ें 1 साल के चाइल्ड से हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो कर पा रहा है. हाउएवर उस 1 साल के बाद जितना सिक्वेंशियली एज अ कंपाउंड थिंग वो ऐड होते जाना चाहिए स्किल्स के 1 साल के बाद 2 साल के बच्चे में जैसे जैसे स्किल्स ऐड होती जानी चाहिए वो ऐड नहीं होती. तो जब आप ये कह रहे थे कि चाइल्ड एकदम ठीक कर रहा था, तब आप 1 साल के बच्चे को देख रहे थे. वो 1 साल के बच्चे के लिए वो प्रोबेबली ठीक था बिल्कुल, लेकिन वही स्किल्स जब और फर्दर प्रोग्रेस होना थोड़ा सा कहीं रुका है, कहीं उसमें डिले आ रहा है, तब हमें ये दिखता है कि डिले हो रहा है. 1 साल के चाइल्ड से जो नेचुरल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं हमारी लैंग्वेज को लेके, स्पीच को लेके, वो कम होती हैं, छोटी होती हैं. और जो हम 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन. दैट इज वाई जब आप 1 साल के चाइल्ड को देखते हो तो कई बार आप उसको बहुत कुछ छोटी सी छोटी चीजें प्रेजेंट होने पर भी ये मान लेते हो कि सब कुछ ठीक है. और 3 साल की एज में हमारा देखने का नजरिया, एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है, और हम छोटी सी चीज अगर एब्सेंट है तो भी हमारी नजर में आ जाता है, और हमें ये पता चल जाता है कि डिले है. तो इट्स अबाउट डिले इन आवर नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट. ठीक है ना. हो सकता है कि 1 साल की एज में भी डिले था, लेकिन हम उसे कैच नहीं कर पाए, क्योंकि वो 1 साल की एज के बच्चे को हम उसकी नजर से देख रहे थे, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी डेवलपमेंट को लेके वो ये थी कि बस एक बेयर मिनिमम इतनी चीजें अगर प्रेजेंट हो तो इसका मतलब चाइल्ड ओके है, और वो प्रेजेंट थी वो चीजें. लेकिन जब हम 3 साल की एज में हमें कई सारी चीजें नेचुरली जुड़ जानी चाहिए,
वो हमें ज्यादा पता नहीं है, तो दैट तब हमें ज्यादा नजर आता है बेसिकली। और हमें फिर ऐसा लगता है कि अब हमें अब नजर आ रहा है, पहले नजर नहीं आया, इसका मतलब पहले ठीक थे और अब ठीक नहीं। ठीक नहीं। दोनों चीजें हो सकती है, रिग्रेशन रियल भी हो सकता है, और रिग्रेशन के बिना कभी कभी हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेसिक होने की वजह से भी हमें ऐसा लग सकता है। Okay, okay, sir. And there is one more questions I would really like. Parents keep asking me like, कि क्यों होता है autism, क्यों होता है? So I always used to tell them that still autism research is going on. It is not 100% proved that like this is cerebral palsy है, वो proved है कि there is some brain injury happens. That's what it happened, right? But in case of autism, they are asking. But nowadays, study is also going that is a genetical things, like there is something is happened in genetics. So I really would like to ask you why this happens and is it true or what? मैं जेनेटिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। सी जेनेटिक में भी दो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारी जो जेनेटिक कोड होती है, जीन्स होती हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी के जैसे ही है, ठीक है। तो ये रिसर्च से ये पता चला है डेफिनेटली कि कुछ ना कुछ जीन्स इन्वॉल्व है, लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जीन्स की कि कई बार हमें ये नहीं पता कि वो पर्टिकुलर बुक कौन सी है लाइब्रेरी की जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। हो सकता है हमें ये पता ना हो। प्लस एक और चीज ये है कि हो सकता है कि लाइब्रेरी की मल्टीपल रैक्स में रखी हुई बुक्स की तरह अगर आप देखें, तो हो सकता है कि ये जो जेनेटिक हम प्रॉब्लम बोल रहे हैं, ये किसी एक जीन या एक बुक की मिसिंग की वजह से ना होकर एक ग्रुप ऑफ बुक्स या अलग अलग जगहों से अलग अलग बुक्स मिसिंग हो गई हैं या अफेक्ट हो गई हैं। दैट टू अलग अलग लोगों में, अलग अलग उसमें बच्चों में कोई अलग ग्रुप ऑफ जीन्स भी इन्वॉल्व हो सकती है। दैट मीन्स इट इज सो कॉम्प्लेक्स। ये एक प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स है जीन्स वाली कि ये तो लोग मान के चल रहे हैं, रिसर्चर्स ये मान के चल रहे हैं कि जीन्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बट अभी भी रिसर्च इस बात पर चल रही है कि वो कौन सी जीन है। जैसे हमें डाउन सिंड्रोम में हमें पता है कि कौन सी जीन है, राइट? Yeah. हमें पता है कि एक पर्टिकुलर जीन है जिसकी वजह से, बट ऑटिज्म में ये नहीं हो पा रहा है कि कौन सी जीन मिसिंग है, या एक ग्रुप ऑफ जीन्स है अगर, तो वो ग्रुप ऑफ जीन्स कौन सी है, बिकॉज और उसका वजह क्या है हमें क्यों नहीं पता। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स हैं कि कोई एक बुक मिसिंग होने से हमें पता करना पड़ रहा है और फिर रिप्लिकेट करना पड़ रहा है कि इस बच्चे में ये बुक मिसिंग है, तो हम पहले साबित करो कि हर ऑटिज्म बच्चे में वही बुक मिसिंग होनी चाहिए। और एक रीजन वो भी है कि वी कैन नॉट सी, हम लोग देख नहीं पाते, सारे बच्चे के सिम्टम्स अलग अलग है। अब एक और एग्जांपल जो जीन्स का होता है वो इस तरह से स्टडी किया जाता है कि मान लीजिए आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, हाँ, आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, और फिर फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं जो नॉन आइडेंटिकल होते हैं बट ट्विन्स होते हैं, और तीसरा वो सिबलिंग होते हैं जो ट्विन्स नहीं है। तो जीन्स की स्टडी की गई कि अगर ये डिजीज, और डिजीज ना कहा जाए, कंडीशन, अवस्था, अगर ये अवस्था 100% जेनेटिक है, देन आइडेंटिकल ट्विन्स में 100% ये ऑटिज्म दोनों ट्विन्स में दिखाई देना चाहिए। करेक्ट और नॉट? लॉजिकली ये दिखाई देना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सो कंफ्यूजन जो जीन्स की है वो ये है कि सिर्फ 77% आइडेंटिकल ट्विन्स में दोनों बच्चों को, दोनों ट्विन्स को ऑटिज्म पाया गया है। दैट मीन्स कि अगर एक ही एग और स्पर्म से अगर ये निकल के हम लोग जो जो ट्विन्स हुए थे, अगर उनमें भी कुछ बच्चों में 100% बच्चों में ऑटिज्म नहीं पाया जा रहा है, तो हम ये कैसे कह दें कि 100% ये कंडीशन जेनेटिक है? ये प्रॉब्लम है साइंटिस्ट की। लेकिन 77% लोगों आइडेंटिकल ट्विन्स में ये पाया गया है। अगर हम नॉन आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विन्स में देखें तो ये परसेंटेज घट जाती है, 77% से ये परसेंटेज और घट जाती है। अगेन हम ये कह रहे हैं कि चलो आइडेंटिकल ट्विन में तो ये हम श्योर है कि आइडेंटिकल ट्विन का हम एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं
क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन में ये श्योर है कि एक ही सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो में डिवाइड हुआ था, करेक्ट? अगर एक ही सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो में डिवाइड होने पर भी ऑटिज्म दोनों ट्विन्स में नहीं पाया जा रहा है 100% टाइम्स, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हर बच्चे का ऑटिज्म जेनेटिक है? हम ये तो कह सकते हैं कि ऑटिज्म जेनेटिक होता है, बट हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चे का ऑटिज्म जेनेटिक होता है। So that means कि still it is not proved why autism is happen. Right, like I said, Yeah. proven So है, लेकिन हाँ. ये प्रूवन नहीं है कि हर बच्चे का ऑटिज्म जेनेटिक से लिंक्ड है. So that is we have only the one option that therapy ही करानी है. यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि यू नो, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट और डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियंस और अदर पीडियाट्रिशियन यूज्ड टू गिव अ मेडिसिन्स. फॉर एन एग्जांपल, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो दे यूज्ड टू गिव अ मेडिसिन्स. तो समटाइम्स पेरेंट्स बोलते हैं कि कितनी हद तक मेडिसिन देना सही है. So I always used to tell them, because this is only works on nervous system. उसकी सिस्टम पे नहीं जाके काम कर रहा है. जो जनरलाइज्ड होना चाहिए वो नहीं होता है. But so they have a lot of confusion with medicine and therapy as well. So please sir, address this one also. Right. Basically एक अच्छा इकोसिस्टम बोलते हैं. इकोसिस्टम मीन्स हमारा सिस्टम जो ऑटिज्म को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए है, वो एक टीम के जैसा है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल भी इन्वॉल्व है, उसमें थेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व है. हेंस हमें ये पता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सारे एस्पेक्ट्स को कर जानने के लिए, डायग्नोसिस जानने के लिए, प्रोग्नोसिस जानने के लिए, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को जानने के लिए. हाउएवर जहाँ तक मेडिसिन का क्वेश्चन है, जो एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी, थ्योरी बोल लीजिए, फिलॉसफी बोल लीजिए, या एक अंडरस्टैंडिंग बोल लीजिए, वो ये है कि हम मेडिसिन से करते ये हैं कि हम चाइल्ड को थेरेपी के बेनिफिट्स के लिए और ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेडिसिन या ऑटिज्म में आज की डेट में मेडिसिन अवेलेबल है या ट्रीटमेंट पॉसिबल है थ्रू मेडिसिन. हम ये नहीं कह रहे हैं, और अगर ये कोई कह रहा है तो शायद ये ट्रू नहीं है. क्योर की बात नहीं कर रहे हैं हम मेडिसिन में, लेकिन एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल वो है जो थेरेपिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, एजुकेटर के साथ, स्कूल के साथ एज अ होल एक टीम की तरह काम कर पाता है. वो ये जानता है कि मेडिसिन देने का क्राइटेरिया होता है या मेडिसिन देने का एक कोई वजह होनी चाहिए हमारे पास, और वो वजह क्या होनी चाहिए अल्टीमेटली. अगर मेडिसिन देने से हम चाइल्ड को थेरेपी के बेनिफिट्स के लिए और आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो शायद हमें मेडिसिन से भी बेनिफिट लेना चाहिए, उस नॉलेज और उस साइंस से नॉलेज लेना चाहिए. हाउएवर ये बात क्लियर है कि मेडिसिन क्योर के लिए नहीं है. मेडिसिन इज नॉट मेंट फॉर क्योरिंग द ऑटिज्म. मेडिसिन इज नॉट मेंट फॉर डायरेक्टली इम्प्रूविंग द फंक्शनल आउटकम. हम फंक्शनल आउटकम बोलते हैं ना कि डे टू डे लाइफ में किसी भी चाइल्ड की कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए वो क्लास में बैठता नहीं है, मान लीजिए वो बात नहीं कर पाता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक मेडिसिन, एक टैबलेट खाएंगे तो कल स्पीच आ जाएगी. हम ये नहीं कह रहे हैं. जो भी एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल होगा वो हमेशा ये कहेगा कि ऑटिज्म एक टीम वर्क डिमांड करता है, और थेरेपिस्ट और professionals like psychologists, educators, school professionals are equally important, are equally have the say in the whole field of autism management. Okay. Or parents can also ask the questions if they are seeing us. Yes, please. अगर कोई क्वेश्चन आया है तो जरूर. Question chat. I have to chat में तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है still. I can see one question from Reena Srivastav on your page. Okay. अगर आप देख पा रहे हैं तो देखें, अदरवाइज मैं आपको मैं नहीं देख पा रही हूँ. Actually I am on this तो
So Reena Srivastav is asking, does biomed and homeopathy medicine helps in reducing symptoms or no? So Reena ji, first of all, basically, I am not a biomed or a homeopath expert, although, and बायोमेड इज समथिंग जो बहुत प्रिवलेंट है, लोग यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं जो प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, बहुत प्रचलन में है, चल रहा है. व्हाट इज what is happening with biomed or diet or homeopathy or anything is that, as far as my opinion is, that it is true that it may not help all the children with autism. However, I have anecdotal बोलते हैं कि भाई पेरेंट ने कहा, पेरेंट ने बताया, पेरेंट ने सुनाया कि हाँ बेटर हुआ है, फायदा हुआ है. जहां तक रिसर्च और साइंस का सवाल है, ये चीजें अभी भी प्रोसेस में है कि बायोमेड हो या होम्योपैथी हो, क्या ये स्टैब्लिश्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है या नहीं है, ये अभी भी एक प्रोसेस की तरह, जैसे ऑटिज्म का वजह जानने का एक प्रोसेस और रिसर्च चल रहा है, वैसे ही इसका भी प्रोसेस और रिसर्च जारी है. हाउएवर, एज अ पेरेंट, एज डॉक्टर्स, आई एम वेरी श्योर कि ये प्रचलन में है, यूज किया जा रहा है, वाइडली यूज हो रहा है. कुछ रिपोर्ट्स डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की भी है, लेकिन ये बात भी सही है कि ये हर चाइल्ड को इक्वल अमाउंट में बेनिफिट करता है, ऐसा नहीं है. आई थिंक वो सबके साथ ट्रू है. थेरेपी में भी ऐसा होता होगा कि हर बच्चा इक्वली इंप्रूव करता है विथ इक्वल अमाउंट ऑफ थेरेपी, ऐसा तो नहीं होता है. बहुत सारी वेरिएबिलिटी है ऑटिज्म में, ह्यूज वेरिएबिलिटी है, एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड से मैच नहीं करता है. दैट इज वाई जो बायोमेडिकल हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो या अदर कोई भी इंटरवेंशंस हो, ये वो इंटरवेंशंस हैं जो हमें या तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की नज़र से देखे जा सकते हैं कि एविडेंस है या नहीं है, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी. और अगर हम ये कहें कि डे टू डे लाइफ में जनरल पॉपुलेशन में क्या ऑक्यूपेशन थेरेपी सेंसरी इंटीग्रेशन से इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो 100% डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिला है पेरेंट्स को. और ये मैं एज ए थेरेपिस्ट नहीं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स ही मुझे आके बताएं कि उनको इम्प्रूवमेंट मिला है या नहीं मिला है, कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है या नहीं मिला है. और मैं ये भी जानता हूँ कि हर बच्चे को इक्वल इम्प्रूवमेंट नहीं मिला है. सिमिलरली बायोमेड में मैं ये चाहता हूँ कि वो पेरेंट फोरम, वो पेरेंट्स जो इसको यूज कर चुके हैं, यूटिलाइज कर चुके हैं, वो पेरेंट्स अगर हमें किसी तरीके से कन्वे करें कि उन्हें लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, देन इट विल बी अ वैलिड वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग. उसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है. जहां तक एविडेंस की सवाल है ऑटिज्म में, तो ऑटिज्म इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि बहुत बार बहुत सारी चीजों का एविडेंस नहीं मिल पाता है. Can I ask? Can I yes, say? go Yeah. ahead. Yeah. Even I have seen like बहुत सारे बच्चे, they were in spectrum with the therapy. Now they are not in normal developmental age. So that therapy really helps, because I have seen the child, they are not taking any kind of medicines, as you said, like okay ऐसा कोई प्रूव नहीं है, but still मैंने देखा है वो बच्चे बिल्कुल मेडिसिन नहीं ले रहे थे, but with the therapy now they are into in this. But early intervention, yes, it's really, I always parents को एक ही चीज बताती हूँ कि whenever early interns का आएगा तो your child will be definitely 100% fine, but it should be a early intervention. फिर difficult to tell them, difficult to address actually. So please address them, how early intervention helps. Sure. So basically it is a research and scientific fact that early intervention is the key to any autism or any other development related problem. It is the key factor. When we say key factor,
What do we mean is that it is the most important aspect of getting the best recovery or best results or best outcome. तो सबसे अच्छा आउटकम अर्ली इंटरवेंशन का ही देखा गया है एज कंपैरिजन टू एनी अदर वे ऑफ ट्रीटिंग. किसी और तरीके से बाद में वेट एंड वॉच करना. सी अर्ली इंटरवेंशन का मैं मानता हूं कि अर्ली इंटरवेंशन का अगर कुछ एक ऑपोजिट एंड है, स्पेक्ट्रम है, तो वो है वेट एंड वॉच. यू नो कि भाई हम अभी नहीं करेंगे, बच्चा अभी छोटा है, हम थोड़ा सा और बाद में करेंगे. ये जो वेट एंड वॉच वाली जो अप्रोच है, ये वो अप्रोच है जहाँ कहीं ना कहीं हम घर वाले पेरेंट्स के भी जब हम कांटेक्ट में आते हैं जो शायद इस फील्ड से ना हो, वो भी कई बार ये कह देते हैं पेरेंट को, मदर को, फादर को, कि शायद आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो, शायद आप लोग कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हो, शायद आप लोग ओवरली एंशियस और कंसर्न्ड हो रहे हो. बट एक्चुअली चाइल्ड छोटा है और चाइल्ड बिल्कुल ठीक है, और अगर ठीक नहीं भी है तो थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा. ऐसा भी होता है कि कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो चाइल्ड का फादर था या मदर थी, वो भी अपने चाइल्डहुड में कुछ इसी तरह की थी, और उनके बाद उनको वेट एंड वॉच कराया गया, उनको उनको प्रॉब्ली झाड़ फूक कराया गया, उनको प्रॉब्ली कुछ मेडिसिन दी गई, तो फिर वो बिल्कुल ठीक हो गए. इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मिथ्स हैं, ये भ्रांतियां हैं, इनसे हमें डेफिनेटली बचना चाहिए. मैं एक और चीज़ इसी के फेवर में बोलना चाहूँगा, जहाँ रिसर्च में ये कहा गया है कि अगर कोई ये कहे कि ऑटिज्म का या किसी भी तरह की डेवलपमेंटल डिफिकल्टी का मोस्ट अर्लीस्ट साइन क्या है, सबसे पहले ये कैसे पता चलता है कि ऑटिज्म या कोई और डेवलपमेंटल डिले है, तो उसका आंसर है पेरेंटल इंस्टिंक्ट. मीनिंग देयर बाय पेरेंट की जो इंस्टिंक्ट है, अगर आपका दिल में एक बात आ रही है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप आईटी फील्ड से हो, बिजनेस फील्ड से हो, प्रोफेशनल हो, जॉब में सैलरीड हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर आपको एज अ पेरेंट एक फीलिंग आ रही है, एक कहीं ना कहीं एक शंका आ रही है कि शायद मेरे चाइल्ड को कहीं कोई प्रॉब्लम है या हो सकती है, शायद मेरा चाइल्ड वैसा नहीं कर रहा है, बिहेव एंड एक्ट एंड परफॉर्म जैसा कोई और बच्चा करता है, तो मान के चलिए कि आपको उस इंस्टिंक्ट को सही मानते हुए आगे बढ़ना है. स्क्रीनिंग करवानी है, असेसमेंट करवाना है, डायग्नोसिस कराना है, ट्रीटमेंट कराना है. ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीनिंग और असेसमेंट कराने के बाद हर चाइल्ड को ऑटिज्म ही निकलेगा. कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो डेवलपमेंटल डिले की तरह दिखाई देती हैं, बट पेरेंट की डिटेल्ड अवेयरनेस ना होने की वजह से मिस भी हो सकती है. एंड दैट इज़ वाई मैं कहूँगा कि अगर पेरेंटल इंस्टिंक्ट है तो उसे ज़रूर दबाए बिना आगे बढ़ें, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, स्क्रीनिंग, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जरूर कराएं. Is there any questions? Because I am not able to see. Sorry. कोई पेरेंट का क्वेश्चन? नहीं, फिलहाल तो मुझे रीना श्रीवास्तव जी का ही मैसेज दिख रहा था, क्वेश्चन दिख रहा था. ओके. बाकी और कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है. ओके. मैं हाँ. आपको एक पिछले क्वेश्चन की तरफ ले जाना चाह रहा था, जहां आप मेडिकेशन की बात कर रहे थे. हाँ. और उसमें एक मेडिकेशन एज वेल एज बायोमेडिकल, ये जो आप बात कर रहे थे, इसके कंटिन्यूएशन में मैं एक और बात कहना चाह रहा था, विच वाज दैट कि वेदर मेडिसिन देनी चाहिए या नहीं, मेडिकल करवाना, इंटरवेंशन होना चाहिए या नहीं. मुझे लगता है कि इसका एक जवाब ये भी है कि आप जब किसी के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, मेडिकल कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आप अपने आप को कंसल्टेशन के लिए उसकी, दूसरे की पर्सन की राय के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं. आप कहते हैं कि मैं अपने आप को ऑफर कर रहा हूं कि मुझे सलाह दी जाए, मुझे मशवरा दिया जाए, मुझे सही राह दिखाई जाए और मुझे
अगर कोई मेडिसिन अवेलेबल है तो वो दिया जाए। यस। मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये एक पेरेंट का राइट है, पेरेंट को ये करना चाहिए। अगर उसे लगता है, अगर पेरेंट को कॉन्फिडेंस है, अगर पेरेंट को ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट करता है उस प्रोफेशनल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, तो मैं कभी नहीं ये कहूँगा कि आप अपने आप को रोकिए और इसके पास जाइए या उसके पास नहीं जाइए। हम एज ए प्रोफेशनल चाहेंगे कि पेरेंट जिस तरह की प्रॉब्लम में है, दुविधा में है, त्रासदी में है, उसमें वो जहाँ से भी पॉजिटिविटी देखता है, एक होप देखता है, एक उम्मीद या एक डायरेक्शन, गाइडेंस देखता है, हो सकता है वो डॉक्टर को या थेरेपिस्ट को एक रोल मॉडल भी मानकर चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि वो मेंटल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से, अपनी एक उम्मीद और उसकी वजह से जाता है। तो ये दो वे प्रोसेस है। एक तरफ पेरेंट खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसको ट्रस्ट होनी चाहिए प्रोफेशनल के ऊपर, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि वो एंड यूजर है, वो एंड डिसाइजर है। डिसाइजर मतलब वो डिसीजन ले सकता है कि कंसल्टेशन के बाद भी क्या वो मेडिकेशन कराना चाहता है या नहीं। सो ये एक संबंध है, एक पेरेंट का डॉक्टर के साथ एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं असेसमेंट के लिए, पर जरूरी नहीं है कि वो हमसे थेरेपी कराते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो पेरेंट गलत है या उस पेरेंट ने थेरेपी नहीं लिया इसलिए वो गलत है। हम ये कहते हैं कि शायद कहीं कोई वजह, कोई फैक्टर है इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में, जहां वो हमसे नहीं जुड़ा या उसको कोई और चीज समझ में आई जो उसे ज्यादा बेटर लगी। बेटर लगी। चाहे वो मेडिकल वाली हो, चाहे वो एजुकेशनल हो सकता है पेरेंट को लगे कि स्कूल ज्यादा जरूरी है। हमारा काम है हम उन्हें करेक्ट दिशा निर्देश दें, उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उसके बाद मेडिसिन लेना, बायोमेडिकल लेना या ना लेना, ये हम, मुझे लगता है पेरेंट और उस कंसल्टेंट की आपसी रिलेशनशिप के ऊपर छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना। सो दिस इज ऑल अप टू बोथ ऑफ देम। बट ऑफ कोर्स जो दूसरा एस्पेक्ट यहाँ है कि वो प्रोफेशनल, और यहाँ यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रोफेशनल या डॉक्टर या बायोमेडिकल पर्सन या कोई भी मेडिसिन पर्सन वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसकी एक पकड़ होनी चाहिए सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं पेरेंट उसको रोल मॉडल मानते हुए, उसको अपने से ऊपर मानते हुए, उसको मोर नॉलेजेबल मानते हुए, ये उसकी जिम्मेदारी है, उस मेडिकल प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि वो एथिकल प्रैक्टिस करे। वो प्रैक्टिस तभी करे जब वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी है कि जो पर्सन मेरे पास चलकर आ रहा है वो मेरे को किस नज़र से देख रहा है, मुझे उस पर खरा उतरना जरूरी है। वो मुझे देख रहा है कि मैं एक सोर्स ऑफ नॉलेज हूँ, मैं एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हूँ, मेरे पास कहीं उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट की है, इस प्रॉब्लम की है, तभी वो मेरे पास कुछ उम्मीद और कुछ सच्चाई के लिए आ रहा है। मेरा काम है मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाऊं, और अगर मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं तो मैं ट्रीटमेंट ऑफर ना करूं। ट्रू। सर एक और क्वेश्चन, जैसे दिस इज लाइक फ्रीक्वेंटली पूछते हैं पेरेंट्स कि हमने तो इतनी, यानी कि अगर थेरेपी सेंटर वो चेंज करते हैं तो, कि हमने तो इतने साल तक थेरेपी कराई है फिर भी क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं है। सो लाइक आई रियली वुड लाइक टू आस्क यू कि द क्वालिटी ऑफ थेरेपी इज आल्सो मैटर्स, सो प्लीज उस पे भी थोड़ा। राइट, ऑफ कोर्स, जैसा मैंने अभी बोला कि ऑटिज्म, एक तो हमें ये पता है कि ऑटिज्म अपने आप में बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। ये इतनी इजी प्रॉब्लम नहीं है कि एक प्रोफेशनल अकेला, और एक प्रोफेशनल जो सिर्फ डिग्री करके ट्रीटमेंट करना चाह रहा है वर्सेस प्रोफेशनल वो जो कमिटेड है इस फील्ड के लिए, कमिटेड है साइंस के लिए, कमिटेड है रिसर्च के थ्रू अपडेटेड होने के लिए। ऐसे प्रोफेशनल जो अपडेटेड ना हो, कॉम्पिटेंट ना हो, वेल ट्रेंड ना हो, उनका एक्सपोजर अच्छा ना हो, कहीं कहीं ना कहीं उसमें उस प्रोफेशनल की ये मोरल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑटिज्म जैसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को
ट्रीट करने के पहले, अपने आप को एज ए ट्रीटमेंट ऑफर करने के पहले कि हाँ मैं ट्रीटमेंट दूंगा, वो अपने एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी, एथिकल, प्रोफेशनल एंड मोरल जिम्मेदारी पूरी करे। वो फील्ड में तभी प्रैक्टिस करे जब वो कॉम्पिटेंट हो, जब उसके पास इनफ आइडियाज हो, या फिर वो जरूर ऐसा करे कि वो किसी न किसी को मेंटर बनाए, किसी को अपना सीनियर और गाइड बनाए, तभी ये प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। अगर हम किसी भी टाइम पर ये सोचें समझें कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अपने आप में संपूर्ण हैं, हमारी नॉलेज कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है, और वो हर तरह की प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटिज्म के साथ डील करने के लिए इनफ है, तो शायद हम अपने ही आंखों में खुद धूल झोंक रहे हैं। क्योंकि जब तक हम खुद ही ये अपने आप से नहीं कहते, तब तक हम दूसरे आप पर्सन से भी नहीं कह पाएंगे, हमारी वो कहने की सिचुएशन, पोजीशन और हिम्मत नहीं होगी। तो मैं रिजल्ट्स नहीं मिलना का अलग रीजन बायोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, एज ऑफ स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, को मॉर्बिड प्रॉब्लम्स, ऑटिज्म के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स है, इस पर तो डिपेंड करता ही है, जैसे कि कोई भी और प्रॉब्लम डिपेंड करती है। किसी भी मेडिकल साइंस में आप किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप देखें, तो हर किसी में ये होता है कि कोमॉर्बिडिटीज की वजह से, दूसरे फैक्टर्स की वजह से रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते हैं। बट उसके साथ साथ जहाँ तक क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की बात है, तो ये डेफिनेटली एक कंसर्न है, और कंसर्न होना भी चाहिए एज ए एसोसिएशन, एज अ बॉडी, एज एन एंटिटी। बिकॉज हमें ये पता है कि थेरेपी फील्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं थेरेपी फील्ड बहुत नेग्लेक्टेड फील्ड भी है। हम थेरेपिस्ट बहुत पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन पढ़ाई और मेहनत करने के बाद भी बहुत बार उनको गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल सेक्टर से, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है कि उनको एक क्लियर कट प्रोसेस और करियर और ट्रेनिंग, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऑप्शंस मिले। ये रेगुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अभी भी नहीं है। कई बार बहुत सारे थेरेपिस्ट इस बात का फायदा उठाकर ऐसा चीजें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड सेट किए हुए नहीं है, कोई नियम और खास कंडीशंस स्टैब्लिश्ड नहीं है। उसकी वजह से बहुत सारे थेरेपिस्ट कॉम्पिटेंट ना होने की बावजूद भी इस थेरेपी को अपना प्रोफेशन बनाने के बजाय, इस थेरेपी को प्रोफेशन को बनाने के बजाय वो कंप्लीटली उसे कमर्शियल बनाने की वजह से ऐसा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि थेरेपिस्ट एजुकेटेड एंड इन्फॉर्म्ड तो है, बट दूसरी बॉडीज जो मार्केटिंग रिलेटेड होती हैं, सेल्स रिलेटेड होती हैं, वो बॉडीज थेरेपिस्ट को कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है, उन्हें कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ करके इस तरह की प्रैक्टिसेस शुरू कर देती हैं जो शायद एथिकल, ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटेंट प्रैक्टिसेस नहीं है। इसकी वजह से पेरेंट और थेरेपिस्ट का कॉन्फिडेंस, पेरेंट और थेरेपिस्ट की ट्रस्ट, पेरेंट और थेरेपिस्ट का आपस का रिलेशनशिप, आपस की वो समझ, वो इमोशनल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और चाइल्ड को रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरी एक अर्ज होगी, एक आह्वान है, रिक्वेस्ट है हर थेरेपिस्ट से कि वो काम करें, अपनी लिविंग, डेली लिविंग चलाएं, पैसे अर्जित करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी को ध्यान रखें, किसके साथ जुड़ रहे हैं उसको ज़रूर ध्यान रखें। मेक श्योर करें कि वो एक ऐसे प्रोसेस में आए जहां वो समझें, सीखें, करें और फिर समझें, सीखें और करें, rather than only one time समझे सीखे और कर दिया। Yes, true. I really agree, sir. Because we are seriously facing all these issues just because of this reason. हम तो सफर चलो बाद में कर लेंगे, but parents and children are suffering more.
just because of this reason. रीना श्रीवास्तव जी का एक क्वेश्चन है, Okay. does GFCF diet helps in healing of gut and does it reduce inflammation? अगेन GFCF डाइट एक डाइटरी इंटरवेंशन है, एक बायोमेडिकल इंटरवेंशन का पार्ट है। मैं बायोमेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, हाउएवर मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को डाइट चेंज करने से बेनिफिट मिलता है, मिला है। मेरे एक्सपीरियंस में डाइट चेंज करने से बेनिफिट बहुत सारे पेरेंट्स को मिला है। अगेन ये जो चीज़ें रिपोर्ट्स हैं या रिजल्ट्स हैं, ये एनेक्डोटल है, मीनिंग देयर बाय कि ये एक पेरेंट समूह से, पेरेंट ग्रुप से निकल के आता है कि रिजल्ट है या नहीं। मैं श्योर नहीं हूं कि ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। हाउएवर ऐसा भी नहीं है कि किसी को कोई रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है, और ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे को समान रूप में रिजल्ट मिला हो या हर बच्चे को रिजल्ट मिला हो। तो ये दोनों चीजों, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप डाइटरी इंटरवेंशन के लिए एक अंडरस्टैंडिंग, एक आप अपनी एक समझ डेवलप करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उस कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं जो GFCF का एक्सपर्ट है। और फिर जो मैंने पहले भी कहा था, कंसल्टेशन के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आप बाउंड हैं डाइटरी इंटरवेंशन करने के लिए। कंसल्टेशन के बाद भी आप जरूर अपनी एक इंस्टिंक्ट, अपनी एक ट्रस्ट को के बेसिस पर ये डिसीजन लेंगे कि क्या आप ये करना चाहते हैं। आपके पास करेक्ट क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके पास करेक्ट मेजर्स, अपने खुद के मेजर्स होने चाहिए कि क्या ये करने वाली चीज है या नहीं है। यूजुअली एक और चीज कही जाती है डाइट के मामले में कि अगर पेरेंट्स डाइटरी इंटरवेंशन कर भी रहे हैं तो भी वो एक 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम जरूर लेके चलें, बेयर मिनिमम। और अगर वो 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उनको डाइटरी इंटरवेंशन से रिजल्ट एक्चुअली मिल रहा है। Even sir, I have a question that is at the very early age बच्चे की, if we stop giving gluten and casein, that is a more GFCF, तो बच्चे में माल न्यूट्रिशन की भी तो प्रॉब्लम हैपन हो सकती है। तो जनरली पेरेंट्स कीप आस्किंग मी सेम क्वेश्चंस लाइक GFCF देना चाहिए या नहीं। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम कि सी, जैसे आपने बताया कि इट इज नॉट इवन प्रूव्ड, और दूसरा कि इन अर्ली एज में ही मैं ग्लूटीन और केसिन, दैट मैं कैल्शियम भी बंद कर दिया और ये जो चाहिए न्यूट्रिशन वही मैंने स्टॉप कर दिया। तो इट कैन बी अ पॉसिबल टू फर्दर, इट लीड टू फर्दर प्रॉब्लम एज वेल। मेरा एक्सपीरियंस है कि बायोमेडिकल GFCF के बारे में दो तरह की राय समान रूप से प्रचलन में है, प्रिवलेंट है। एक राय ये है कि बायोमेडिकल बहुत अच्छा है, बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत रिजल्ट्स हैं, रिसर्च में भी रिजल्ट्स हैं, और मैं नेगेट नहीं कर रहा हूँ कम्प्लीटली। बट उसी के साथ साथ मुझे पता है, मैंने ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ भी काम किया है जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जिनका इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट, फेथ नहीं है। तो दोनों तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स, दोनों तरह की इंस्टीट्यूशंस, दोनों तरह की राय, दोनों तरह की धारणाएं, प्रैक्टिसेस प्रचलन में हैं। पेरेंट्स और थेरेपिस्ट एक बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके, एक बहुत अच्छे से, क्योंकि थेरेपिस्ट अकेला ऐसा पर्सन है जो पेरेंट के अलावा चाइल्ड को लगभग रोज देखता है। yes. क्योंकि वो चाइल्ड को रोज देखता है, उसकी एक यूनिक पोजीशन है, उसकी एक यूनिक सिचुएशन है कि वो पेरेंट के साथ और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन करता है, करना चाहिए, और बहुत अच्छा है कि वो करते हैं। चाहे वो थेरेपी से जुड़ी हुई चीज़ ना भी हो तो भी मैं ये मानता हूँ कि थेरेपिस्ट का रोल सिर्फ थेरेपिस्ट नहीं होता है, थेरेपिस्ट एक फैमिली का वेल विशर अपने आप बन जाता है। yes. पेरेंट थेरेपिस्ट के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और थेरेपिस्ट पेरेंट के साथ बहुत वार्म रिलेशनशिप रखते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज खासकर इंडियन सोसाइटी में तो देखने को मिलती ही है।
डॉक्टर्स या अदर प्रोफेशनल्स चाइल्ड से मिलते हैं, उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज है, लेकिन मुझे लगता है कि पेरेंट अगर 24 घंटे स्पेंड करता है चाइल्ड के साथ, तो थेरेपिस्ट ही वो अकेला ऐसा यूनिक प्रोफेशनल है जो हर 24 घंटे में चाइल्ड से फिर से मिलता है, मुलाकात करता है, उसे देखता है, उसके साथ इंटरैक्ट करता है, उसके साथ खेलता है। हो सकता है कि पूरे दिन नहीं खेलता है, लेकिन हर 24 घंटे में आप जिसको देखते हो, आपकी राय, थेरेपिस्ट की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। और थेरेपिस्ट की राय और पेरेंट का ट्रस्ट, इन दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों में मैं एज ए प्रोफेशनल राय नहीं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि शायद वो मेरी पोजीशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं एज अ पेरेंट वेल विशर, एज अ पेरेंट प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ द पेरेंट, मैं उनके साथ मिलकर इस बारे में बात जरूर करता हूं, जैसे वो किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से बात करता है पेरेंट। मैं चाहता हूं और मैं ऐसा करता हूं कि पेरेंट मुझसे भी बात करे और करता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं उसे एज ए बायोमेडिकल एक्सपर्ट की तरह एडवाइस दूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि मैं उसे एक ऑनेस्ट फ्रेंड, एक ऑनेस्ट वेल विशर और एक ऑनेस्ट फैमिली मेंबर की तरह उसके हितों को ध्यान में रखते हुए उससे डिस्कस जरूर करूं। और मैं चाहूंगा कि ऐसा हर जगह होना चाहिए। Thank you, sir. One more question, that is, parents are always confused with the speech and language and communication. So, like, they used to tell us like कि हमें speech therapist के पास जाना चाहिए because ये बोलता नहीं है. So I always used to address them. Always, you are more expert. So, and my mentor, so I really would like to know about that. Tell them the difference between speech and language and communication. ओके, सो एक सिंपल सिंपल भाषा में समझा जाए तो कम्युनिकेशन एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। ये हमारे चाइल्ड के डेवलपमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जैसे मोटर माइलस्टोन्स बोलते हैं, फिजिकल माइलस्टोन्स, 6 महीने की उम्र में चाइल्ड थोड़ा सिटिंग और क्रॉलिंग सीखता है, 6 से 8 महीने में चाइल्ड सिटिंग एंड क्रॉलिंग सीखते हैं। 12 महीने की उम्र में चाइल्ड खड़े होना, चलना सीखते हैं। सिमिलरली आपका चाइल्ड का, किसी भी चाइल्ड का डेवलपमेंट फिजिकल के साथ साथ कॉग्निटिव, जिसको इंटेलिजेंस, समझदारी, समझना, बात को समझना, जजमेंट, अटेंशन, इन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है जिसे हम कॉग्निशन कहते हैं। उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल एरिया होता है कम्युनिकेशन। कोई भी चाइल्ड जिसका स्पीच अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज अभी वो बहुत छोटा है, 3 महीने का बच्चा हो या 1 महीने का बच्चा हो, हर बच्चा कम्युनिकेट जरूर करता है। जरूरी नहीं है कि वो बोलता है, क्योंकि अभी उसकी स्पीच की उम्र नहीं आई है। तो स्पीच जरूरी नहीं है कि 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के बच्चे में प्रेजेंट होता है, बट कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब चाइल्ड को भूख लगी तो वो उसने क्राइंग किया, जब चाइल्ड गिर गया तो उसने क्राइंग किया, जब चाइल्ड को कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ तो उसने क्राई किया। एक्चुअली क्राइंग क्या है? एक कम्युनिकेशन है। एक चाइल्ड ये बताता है, एक्सप्रेस करता है कि मेरी तरफ ध्यान दो और मुझे ये चाहिए। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर उम्र में आके सिर्फ मदर, वो एक यूनिक पर्सन होती है जो ये कहती है कि चाइल्ड रो रहा है लेकिन मुझे पता है कि वो क्यों रो रहा है। राइट? तो ऑल्दो चाइल्ड कम्युनिकेट करता है सिर्फ क्राइंग, बट मदर अपना जजमेंट लगाकर उस चाइल्ड की कम्युनिकेशन को और बड़ा कम्युनिकेशन बना देती है। उसे एग्जैक्टली पता होता है, ओ इसको भूख लगी है, ओ इसके पेट में दर्द है, ओ इसको अभी बाहर जाना है, ये बहुत परेशान हो गया है लेटे लेटे। सो ये जो कम्युनिकेशन हम बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम समझ गए कि चाइल्ड क्राई क्यों कर रहा है, तो उसमें हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। वो जो चाइल्ड ने कम्युनिकेट किया क्राइंग, और वो जो हमने उस कम्युनिकेशन में अपना कॉग्निशन जोड़ दिया। नाउ मीनिंग देयर बाय दैट कम्युनिकेशन राइट फ्रॉम बर्थ से लेके आगे तक हमेशा अवेलेबल, हमेशा प्रेजेंट रहता है। ऑल्दो
एक पर्टिकुलर एज पे आके आप कम्युनिकेशन के मोड्स और मीडियम चेंज करते हो, आप वर्बली कम्युनिकेट करने लग जाते हो। स्पीच एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट हो सकता है। स्पीच के और फर्दर बहुत पार्ट्स होते हैं, लाइक क्लैरिटी ऑफ स्पीच, pronunciation, vocalization, sound making, all those clarity कि भाई ट को ट बोला या ट को क तो नहीं बोला। वो सारी चीजें और ब्रॉडर चीजें, स्पीच अपने आप में एक बड़ी फील्ड है। बट रिमेंबर, कम्युनिकेशन हमेशा ही बहुत बड़ा एरिया है जिसमें हम सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन को ही इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हम चाइल्ड के जेस्चर्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, आई गेज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पॉइंटिंग ऑफ बाय द फिंगर, इन सबको भी इंक्लूड कर रहे हैं। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म को कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती हैं एज ए कार्डिनल, एज ए कोर साइन। ये उनका डायग्नोसिस का ही हिस्सा होता है। स्पीच, बहुत सारे ऑटिज्म बच्चों में स्पीच प्रेजेंट होती है, वो बोल पाते हैं, उनके वर्ड्स निकलते हैं, उन्हें पता है कि क को क बोलना है या ट बोलना है। हाउएवर, जरूरी नहीं है कि हर वो बच्चा जिसका स्पीच अच्छा है, जरूरी नहीं है कि उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो, या कहा जाए कि कम्युनिकेशन भी एज अप्रोप्रिएट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। And And that please is why, please address that how language and communication is very, very important, play roles in further development as well. Because sometimes what happens, parents are still, they want to waiting as we discussed earlier, like, therapy ke liye jitni wait karte hai, they are waiting for, for language and communications ki aayega, bolega. But we always address them, please go and consult someone who is really expert with language and communication, because it is a very important role. Because see, आप कब तक बच्चे का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलाते रहोगे? इन सर्टन एज 3 है या 4 है, दैट इज अ मैक्सिमम के चल जाता है, बट आफ्टर दैट he has to communicate because he is the more वो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को एक्सपोज करेगा, so he needs more language and communication. So please tell and address them that how language and communication is very important role, right, in case of autism or in case of any other developmental difficulties. In case of autism, language and communication, the important thing है, most important you can say, और the important thing है, because जो बच्चे हैं जिनको डेवलपमेंटल डिले है, ऑटिज्म है, ये कहा जाता है, ये रिसर्च से निकाला गया है, ये प्रूव किया गया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वोकलाइजेशन, साउंड मेकिंग, स्पीच नहीं है। इनफैक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेफिसिट ही उनकी बाकी स्पीच की प्रॉब्लम्स का वजह है, रीजन है, अंडरलाइंग रीजन है। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेशन में, उनका अगर हम और अच्छे से डिफाइन करें तो उन्हें प्रॉब्लम इस बात की है कि उनके अंदर या तो इंटेंट टू कम्युनिकेट ही नहीं है, मुझे कम्युनिकेट करने का जो मेरा अर्ज होना चाहिए, मेरे अंदर एक आवाज़ होनी चाहिए कि मुझे दूसरे से कम्युनिकेट करना है, चाहे वो नीड बेस्ड के लिए करें या विदाउट नीड के लिए करें, लेकिन ये एक अर्ज, ये इंटेंट ऑटिज्म बच्चों में कम पाई गई है। नाउ इंटेंट टू कम्युनिकेट या मेरा अर्ज, इरादा या अर्ज कम होना स्पीच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि स्पीच में हम साउंड मेकिंग, वोकलाइजेशन, टंग मसल्स, चीक मसल्स, इन सब की बात करते हैं। हाउएवर ऑटिज्म वाले बच्चों में दोनों चीजें भी एक साथ देखी जा सकती है। उनका इंटेंट टू कम्युनिकेट भी प्रॉब्लम हो सकता है जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में आता है, और उनका फेलियर टू क्रिएट द स्पेसिफिक साउंड भी दिखाई दे सकता है, जो कि टिपिकल स्पीच इंटरवेंशन का पार्ट है, राइट। सो द अदर थिंग इज कि बच्चे जो है रिलेट नहीं करते पीपल के साथ, वो ऑब्जेक्ट्स के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं, वो मोबाइल फोन और ज्यादा घर के ऑब्जेक्ट्स में बिजी होते हैं। बट अगर कोई चाइल्ड
अगर कोई एडल्ट उनके आसपास आ जाए, उनके रूम में आ जाए और उनको उनके साथ कम्युनिकेट करे, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मीनिंग देयर बाय कि वो एक पर्सन को, एक ह्यूमन बींग के साथ क्या कनेक्शन बनना चाहिए, उनका ये कनेक्शन बनना ही डिफिकल्ट है। कोई भी चाइल्ड जब तक इंटेंट नहीं होगा, जब तक उसका कनेक्ट नहीं होगा दूसरे पर्सन के साथ, उसका स्पीच डेवलपमेंट नहीं आएगा। वजह क्या है कि अगर मेरा इंटेंट टू कम्युनिकेट एंड मेरी कनेक्ट विद द पर्सन नहीं है, तो मैं बात करूंगा किससे? इट टेक्स टू टू टॉक, ऐसा बोलते हैं ना, इट टेक्स टू टू टॉक। तो इट टेक्स टू टॉक बहुत ही वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स बात नहीं करते। बहुत सारे बच्चे 100 पीस पजल, 400 पीस पजल बनाते हैं, मोबाइल फोन से खेलते हैं, टीवी देखते हैं और वो ब्लॉक्स को लाइन अप करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट से कनेक्ट होता हूं और पर्सन से कनेक्ट नहीं होता हूं, तो वन, स्पीच में प्रॉब्लम आएगी। टू, अगर मुझे ट्रीटमेंट करना भी है तो मुझे रूट कॉज को ट्रीट करना चाहिए, जो कि है इंटेंट टू कम्युनिकेट, रिलेटिंग टू पीपल, रादर देन एक्सटर्नल प्रॉब्लम और रादर देन मैनिफेस्टेशन। स्पीच ना होना एक मैनिफेस्टेशन है, बट अंडरलाइंग रूट प्रॉब्लम क्या है? अंडरलाइंग रूट प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट ही नहीं हो रहे, हम दूसरे ह्यूमन बीइंग को रिलेट ही नहीं कर पा रहे। दैट इज वाई language and communication should actually come first as a part of the goal, as a part of the assessment, as a part of the treatment. When the child is doing really bright and he's high functioning, then we can take language and communication and speech together also. However, in any case, language and communication को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली हमें सीधे स्पीच में चले जाना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है, और ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। Yes, sir. And that is true. One more question, that is how sensory integration helps. Sorry to use this word because it should be a quality of sensory integration, because a lot of therapists are doing sensory integrations since we used to see that galat hota hai. So how it helps, and tell the myths as well. Agar proper sensory integration nahi hoga to what will be the happen in next, yani कि क्या हो सकता है? सो सी, सेंसरी इंटरवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरवेंशन का थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर आपको पता हो, और बहुत अच्छा होगा अगर आपको ये पता हो कि ऑटिज्म का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें भी अब सेंसरी ऐड हो चुका है। तो अगेन उसी से पता चलता है कि सेंसरी कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर वो डायग्नोसिस का हिस्सा है ऑटिज्म का, तो हर वो चाइल्ड जिसको ऑटिज्म है, प्रॉबेबली 80%, 75% बच्चों को, कई बार तो लोग 100% भी बोलते हैं कि ऑटिज्म बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं। ना सेंसरी इश्यूज का जो ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली बहुत प्लेफुल होता है, बहुत प्ले बेस्ड होता है, एक्टिविटी बेस्ड होता है, और वो इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि चाइल्ड मोटिवेट हो, हम चाहते हैं कि चाइल्ड हमारे साथ कीनली, एक्टिवली, वॉलंटरीली अपने खुद की मर्जी से काम करे। सेंसरी इंटीग्रेशन बहुत प्लेफुल होने की वजह से कई बार मिसयूज होता है, बिकॉज प्लेफुल इंटरवेंशन जो होते हैं कई बार वो थेरेपिस्ट को या नॉट सो कॉम्पिटेंट पीपल एंड थेरेपिस्ट को ऐसा फीलिंग दे सकता है कि ये बहुत इजी है। चाइल्ड को एंगेज करना होता है हमें एक्टिविटीज में, और ये शायद इजी है, बट ऐसा है नहीं। सच्चाई ये है कि ओटीज को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एसआई कोर्सेज हो, क्योंकि जब तक वो ये सारी चीजें नहीं करता है तब तक वो शायद एथिकली, मोरली राइट नहीं रखता है एसआई को प्रैक्टिस करने का। And sometimes here I have seen that even after course also there is some lackings are still there in sensory integration, and just because of the wrong treatment, child and parents both are suffering. So it is very important to have research, keep update yourself. कोई भी इंटरवेंशन अगर कॉम्पिटेंट पर्सन से किया जाएगा तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा,
उसका रिजल्ट बेस्ट पॉसिबल होगा, और मोस्ट प्रोबेबली उसका रिजल्ट और उसका जो इंटरवेंशन का जो कंटेंट है वो भी लॉजिकली साइंटिफिकली करेक्ट होगा. जब कोई थेरेपिस्ट एथिकली नहीं कर रहे हैं, इनकॉम्पिटेंटली कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो चाइल्ड के फाइनल आउटकम को इम्पैक्ट करेगा. और ये एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है, उनकी रोल है. और वो एसोसिएशन जरूरी नहीं है कि फॉर्मल एसोसिएशन हो, इनफॉर्मल एसोसिएशंस भी बनाए जा सकते हैं थेरेपिस्ट एंड पेरेंट के, जो ये कह सकता है कि हम इस बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना हो और प्रैक्टिसेस में ट्रांसपेरेंसी हो, पेरेंट को पता हो कि हाँ ये चल रहा है और ये हमारा नेक्स्ट गोल है. Then Yes. it should be fine Fine. for the result part also. Yeah. If there are any question from parent. I think we have taken enough time also, and there are no more questions also. No more There are no question. more questions. I think हमारा time भी शायद हो गया है. Yeah. Okay. So let's conclude the session. In the conclusion, I would like to have a vote of thanks for Megha, because she thought of doing this program. Out of all the therapists, usually, especially those ones who are hands-on with children, especially now when the pandemic is settling down a little and children are wanting to do therapies, maybe at home, maybe in the home environment itself. I'm sure to take this initiative to think about parents, to think about their myths, to think about their questions is a commendable effort from Megha. So on behalf of parents community, Megha, I thank you for hosting such a program. Sir, I really would like to thank you, because since I know you long years, and you are my mentor, as I early say that. So, and more expert into this. So I really thankful, because this is the really nice program to make them understand and all that. I hope further we can, the design something regarding this, so it Sure. really can help to community. Of course. And the program will be present after the program. Also, the program will be present on your Facebook page, which means Yeah. people can also comment and give leave their questions after the program as well. As well, we'll definitely try to address all the parents after that also. You all Sure. are welcome, and thank you so much Thank once you. again, sir. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye bye.